قابل صد احترام اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے اور کوئی رسمی تقریب بھی نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ہمارے دوست جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں جب بھی کوئی بڑا عالم دین آتا ہے یا کوئی ایسی شخصیت تشریف لاتی ہے جو اپنی ذات میں ایک انجمن کی حیثیت رکھتی ہو، جس کو اللہ نے کسی نہ کسی خوبی سے نوازا ہو، جو اپنی جگہ ایک بڑا کام کر رہی ہے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے درخواست کرے کہ وہ ہمارے طلبہ کو اور اساتذہ کو اور خود ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دے اپنے تجربات کی روشنی میں، جن باتوں سے ہمیں فائدہ ہو، جن باتوں کو سن کر سمجھ کر ہم اپنے مستقبل میں کچھ کرنے کے ارادے کر سکیں اور جن چیزوں کو سمجھ کر ہم آگے بڑھنے کے لیے محنت کر سکیں۔ تو ہمارے درمیان میں جو حضرت تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، لیکن الحمدللہ ایک بہت بڑا آپ کام کر رہے ہیں۔ مختصراً میں آپ کے سامنے تعارف اس طرح کراؤں کہ آپ نے باضابطہ کہیں کسی جگہ ایڈمیشن لے کر کے انگلش کی تعلیم حاصل نہیں کی، مگر اس کے باوجود بعد میں چل کر دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کئی ساری ڈگریاں آپ نے حاصل کی اور انگلش میں اتنی محنت کی کہ آج میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوں کہ اردو زبان سے اچھی آپ انگلش زبان بولتے ہیں۔ میں اچھی اس لیے بول رہا ہوں کہ ان کی جو مدر لینگویج ہے وہ اردو نہیں ہے، آپ کا تعلق آسام سے ہے تو وہاں ان کی مقامی جو زبان ہے وہ بولی جاتی ہے، لیکن انگلش میں آپ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، بہت ساری تعلیم گاہوں میں سال میں متعدد مرتبہ کیمپوں میں جاتے ہیں اور ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ الحمدللہ بات کرتے ہیں۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کی آپ کی کلاسز بھی چلتی ہیں، اور مجھے رات بتلایا کہ کئی سارے بیچز ہمارے انگلش اسپیکنگ کے چلتے ہیں، جس میں کالج کے اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈینٹس آتے ہیں اور الحمدللہ انگلش میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بھی سوچا کہ آپ تشریف لائے ہیں، آج ان کا دیوبند کا سفر ہے، مرکز المعارف کے ایک بڑے پروگرام میں سیمینار میں شرکت کے لیے یہ جا رہے ہیں، وہاں سے پھر دلی آئیں گے، پھر کشمیر جائیں گے اسی مقصد کے لیے۔ تو میں نے سوچا ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، تو میری بڑے ادب کے ساتھ آپ تمام طلبہ سے گزارش ہے کہ آپ تجربے کی روشنی میں حضرت کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ، توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اس نیت سے سنیں کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور اپنے فیوچر میں کچھ کرنے کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں بڑے ادب کے ساتھ شکریہ کے ساتھ درخواست گزار ہوں مولانا عبدالحفیظ صاحب قاسمی دعوت برکاتہم سے کہ آپ اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نیچے کو ہے اس سے کم بات کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے دو بھائی، پڑھ کے تھک گئے کیا؟ ویسا انرجی کے ساتھ ہیں۔ چلو پھر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، تو خوشی ہو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا آپ صبح سے پڑھ رہے ہیں اور لگاتار پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی تھک گئے ہوں گے، تو ابھی مجھے یقین ہو گیا کہ ابھی آپ کے اندر انرجی ہے، اسٹیمینا ہے، طاقت ہے، ہمت ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا معلما، وقال النبی ایضا العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت مختصراً میں بات کروں گا۔ پہلی بات میں کہہ دوں، مفتی صاحب سے، حضرت مولانا مفتی
قاسم साहब दामत बरकातुहुम, इन्होंने जो भी कलिमात, जो भी मोहब्बत वगैरह का इजहार किया है, मैं इसका 1% भी लायक नहीं हूँ। ये आपका बड़प्पन है, ग्रेटनेस है, ये मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2-3 दिन से आपके साथ हूँ। आप अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में हम वहाँ बैठे भी आपको देखते रहते हैं, आपके प्रोग्रामात, आपकी एक्टिविटीज़ और आपके जो मूवमेंट्स हैं वो मैं देखता हूँ, बहुत खुशी होती है। एक ख्वाहिश थी दिल में, एक उम्मीद और उमंग थी कि मैं कभी यहाँ आऊँ और बिल्कुल बराह रास्त फेस टू फेस हम मिल सकें, लेकिन अल्लाह ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी और आप लोगों से मैं मिल सका, तो इसलिए मैं ख़ुद को खुश नसीब समझता हूँ। मुख्तसरन बात यह है, आप अभी स्टूडेंट्स हैं, कभी हम भी आपके साथ आपकी तरह हुआ करते थे। अभी हम उम्र की वजह से और बिल्कुल ज़माना ये वक्त बीतने की वजह से आज हम इस लेवल पर है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम बूढ़े हो जाएंगे और उसके बाद भाई हमारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ज़िम्मेदारियाँ आप पर आ रही है। हम जब स्टूडेंट्स थे, जब हम तालिब इल्म थे, तो हम सोचते थे कि भाई इसी तरह हमारी ज़िंदगी बीतेगी। नहीं, अभी हमारे कंधों पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन हम वो ज़िम्मेदारी अब अदा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारी कमी कोताही हमें महसूस होती है, बहुत सारे वीकनेस, और हम कभी ये अफसोस भी करते हैं कि काश हम ज़माना तालिब इल्मी में, मतलब स्टूडेंट्स लाइफ में, अगर हम और ज़्यादा मेहनत करते, हम अपने असातिज़ा की सारी बातों पर अमल करते, तो आज हमें और बहुत कुछ मिलता। लेकिन वो मुमकिन नहीं है कि वक्त कभी फिर पलट कर नहीं आता है। टाइम नेवर कम्स बैक, टाइम नेवर कम्स बैक। पहली बात यह है, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, और आप लोगों को इसलिए मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आज के ज़माने में आप मदरसे में पढ़ रहे हैं और उसके साथ आप जो मॉरल और मॉडर्न एजुकेशन है वो भी साथ ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी साथ हो रही है। आपकी अपब्रिंगिंग जो तरबियत है, आप इस तरीके से आपकी तरबियत हो रही है कि आगे चलकर मुस्तकिल में, फ्यूचर में आपसे बहुत बड़े बड़े काम इंशाल्लाह खुदा लेगा और आप एक इनकलाब बर्पा कर सकेंगे। अभी आप यहाँ जहाँ भी है, लेकिन आगे चलकर अगर इस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग होती है, आपकी तरबियत होती है, और आप इस तरीके से अपने को मतलब ख़ुद को तरक्की करते हैं, डेवलप करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे चलकर इस दुनिया को आपकी शक्ल में इंशाल्लाह बहुत सारे रहनुमा मिलने वाले हैं। आपके माँ बाप आपको सिर्फ स्कूल में भेज सकते थे, या सिर्फ ऐसे इदारे में भेज सकते थे जहाँ स्कूल की बात नहीं, सिर्फ मदरसे की तालीम होती है, ठीक है। लेकिन आपके माँ बाप ने बहुत अच्छा एक इदारा कायम किया है। मैं आपके इदारे के बारे में, मैं अपने दोस्त हज़रत मौलाना कासिम साहब मुफ्ती साहब से बहुत बातें हुई है, और उनके अंदर जो कुड़न है, जो सपना है, जो ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो मैं आपको अपने अल्फाज से नहीं बयान कर सकता। लेकिन इन्होंने महसूस किया है कि आज जो ज़माना है वो आज से तकरीबन 10 साल के बाद ये दुनिया कहाँ तक एडवांस होगी, लोग कितने एडवांस हो गए, कितने टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके साथ, पूरी दुनिया इस वक्त देख सकती है। अगर आप अपनी बात को एक वीडियो लाइव कर दो, पूरी दुनिया के किसी कोने से आपसे जोड़ सकता है। पूरी दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है, ठीक है। तो मुख्तसरन बात यह है, आपको ये एहसास दिलाना है आप ये क्या बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप आलिम बनने जा रहे हैं, सब आलिम उलमा बनने जा रहे हैं ना, है। आप बताइए, हमारे साथ बात कीजिए, उर्दू समझ में आ रही है? इन्होंने कहा है कि मैं इंग्लिश अच्छी तरह बात कर सकता हूँ उर्दू से। हाँ सही है, क्योंकि उर्दू मेरी ज़बान नहीं है। तो आप क्या बनने जा रहे हैं? आलिम, अच्छी बात है, उलमा बन रहे। उलमा का मकाम इस दुनिया में खुदा की नज़र में सबसे ऊंचा है, क्योंकि उलमा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या है, ये मेरे वारिस है, सक्सेसर्स है। उलमा आर द सक्सेसर्स ऑफ द प्रॉफिट, मतलब नबी की जो जिम्मेदारी, जो मिशन, जो उनका जो मिशन विशन वगैरह है, वो सिर्फ अब उलमा पर आ रही है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा,
अब पूरी दुनिया को चलाने के लिए, पूरी दुनिया को सही रहनुमाई करने के लिए एक अब उलमा की जिम्मेदारी है। अब दुनिया के अंदर इंसानियत है, जितने इंसान है, जितने कैटेगरी के इंसान है, वो सबको कौन रहनुमाई करेगा? सबकी रहनुमाई कौन करेगा? उलमा। चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो, बिजनेस हो, कोई भी हो। तो आज आप नबी नहीं है, नबी के कायम मकाम है। उस नबी के मिशन को आपको मजबूती से पकड़ना है। अब आप बताइए, उलमा बनने जा रहे, वो नबी किसके लिए भेजे गए? बता सकते हैं? वो नबी किसके लिए थे? मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरब के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, हर कौम के लिए, हर तबके के लोगों के लिए नबी सिर्फ और सिर्फ वो आइडियल है, वही रहनुमा है, वही हादी है, वही प्रोफेट है, वही मैसेंजर है। अब उनकी तालीमात आप पढ़ रहे हैं, कुरान हदीस आप पढ़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप पूरी दुनिया की लीडरशिप आप अपने हाथ में लें। ठीक है, अगर आप पूरी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकते तो आप आलिम कहने के और बनने के लायक नहीं हैं। जब तक आपके अंदर वो जज्बा, आपके अंदर वो मतलब इरादा और इंटेंशन नहीं होगा, नियत नहीं होगी कि भाई मुझे, मेरी जिम्मेदारी अब पूरी दुनिया की है। अभी यहाँ फारिग होने के बाद आप 4, 5, 7 सालों में तो आप फारिग हो जाएंगे, आपकी स्टूडेंट्स लाइफ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तालीम ख़त्म नहीं होगी। आप अगर ये समझे कि मैंने सीख लिया, तो वो आपकी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो इसलिए अभी यहाँ मदरसे से आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से तालीम हासिल करते हैं। ये 8-10 सालों में यही सिखाया जाता है। उसके बाद आपको रियल प्रैक्टिकल आपको किस तरीके से तालीम हासिल करनी है, एक्सपीरियंस हासिल करना है, और लोगों के साथ जाके मिलजुल कर आप किस तरीके से खुदा के इस कलाम को और नबी की तालीमात को आप आम करें, यही सिखाना है। समझ गए बात? तो आपका मिशन वही है और उसी मिशन की तैयारी आप यहाँ करेंगे। अभी आप मुझे बताइए, आज के दौर में आप अगर लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों को दावत देंगे, तो आपके अंदर कितनी सलाहियत की ज़रूरत है। आज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, आज ठीक है, आप देखो हर तरफ टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप हो चुकी है, साइंस तरक्की कर रहा है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है। तो आप सिर्फ वही है, आप पुराने ख्यालात के ज़रिए ट्रेडिशनल हुए थे, अगर आप उन लोगों के साथ मिलेंगे तो उनके सवालों के जवाब आप नहीं दे पाएंगे। कुरान की एक एक आयत जो है वो बिल्कुल पूरी साइंस की तर्जमानी करती है। कुरान और साइंस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। कुरान ने जो कुछ कहा था 1400 साल पहले, आज वो साइंटिस्ट जो है ना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उसको क्या मान रहे हैं, आप उस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें कुरान को आप कौन समझाएगा? आप समझाएंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर नफरत की आग जलाई जा रही है, देश के अंदर भाईचारा वगैरह ख़त्म किया जा रहा है, इंसानों के अंदर से इंसानियत ख़त्म हो रही है। जाहिलियत का ज़माना जो था उससे रिलेट किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त रोशनी बनकर आपको खड़ा होना होगा। अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से आपको तैयार होना है। आपको महारत हासिल कर, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, साइंस के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं, तो आप चार दीवारी के अंदर आपने जो कुछ सीखा है, कुरान और हदीस की जो नहव सर्फ वगैरह की किताबें आपने सीखी है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। आप साइंस के कॉन्सेप्ट को, उनके टर्म्स को, कुछ मोटे मोटे टर्म्स, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई एक आलिम जो है वो साइंटिस्ट बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, बिल्कुल नहीं। आप डॉक्टर मत बनो। आप डॉक्टर क्यों बनोगे? डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप आलिम बनो, लेकिन ऐसा आलिम बनो जाके आप डॉक्टरों की रहनुमाई कर सको। आप इंजीनियर मत बनो, ठीक है। आप एक इमाम बनो, लेकिन एक इमाम की क्या जिम्मेदारी हो सकती है पता है? कल हम लोगों ने आपके यहाँ मस्जिद में जुमा की नमाज़ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की तकरीरें हमने सुनी हैं, और वो तो बचपन से ही हमारे साथ है, हम जानते हैं भाई
उन्होंने कितनी तैयारी की है, मतलब समाज के हर तबके के लोगों के साथ उनका ऐसा जोड़ है कि आप भाई उनके पास आते हैं। क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि समाज के किस आदमी से किस तरीके से बात करनी है। अनजिलुन्नास मनाजिलहुम, लोगों को उनके हैसियत के एतबार से। अगर कोई बगैर पढ़ा लिखा आदमी है और उसके साथ आप मतलब कोई मतलब एजुकेशन के बड़े बड़े टर्म्स पढ़ने लगे तो वो समझ में नहीं आएगा। कोई एजुकेटेड आदमी है उससे आप बिल्कुल वही अनपढ़ जैसी बात करें तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप इमाम भी बन रहे हैं तो तैयारी के साथ बनिए कि उस समाज में, उस मोहल्ले में जिस तबके के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एजुकेटेड हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ्स बैकग्राउंड के हो, इंग्लिश बैकग्राउंड के हो, उनकी ज़बान में आप कुरान और हदीस की दावत पहुँचाएं। सही है ना? तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके मदरसे में, आपके इस इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छे तरीके से एक जामे और माने एक सिलेबस तैयार हुआ है। आप उस पर 100% मेहनत करो, अमानतदार बनो और आप सीरियस बनो, सिंसियर बनो। ठीक है? अगर आपने 1 मिनट को यहाँ ज़ाय किया है तो आपने उम्मत को भी धोखा दिया, अपने असातिज़ा को भी धोखा दिया, आपने खुद को भी धोखा दिया। ठीक है? तो इसलिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आप लोगों का ये जो वक्त है, ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक लम्हा अगर बीत गया तो वो फिर कभी नहीं आएगा। कफ़े दस्त मलते रहेंगे पूरी ज़िंदगी और वो फिर वो ज़माना नहीं आएगा। तो इसलिए आज के 10 साल के बाद वो दुनिया की जो ना सूरत है वो बिल्कुल बदल जाएगी। तो इसलिए अभी से आपको तैयार होना है। ठीक है? तो आप तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह।